welcome to our second podcast, the Brahmaputra Talks. And today we have a very special guest with us, none other than Vashi Mishra. Hi, Vashi. Hello. How are you, Vashi? I am good. I'm very well. Thank you. आप अपने बारे में थोड़ा कुछ बताइए because our audience are completely new. And क्योंकि आप आसाम से हो, नॉर्थ ईस्ट से हो, पर काफ़ी साल आप बाहर रहे. बाहर मतलब आप बहुत ही बहुत बाहर रहे. Yeah. And you have gained a lot of experience और आप millennial हो. तो Gen Z को आपकी बहुत ज़रूरत है, मतलब the knowledge that you have. आप काफ़ी दुनिया घूम चुके हो. So you carry a lot of experience and a lot of knowledge. तो आप kindly share कीजिए, please. I don't know where do I start from, but of course, born and brought up Assam gives you a lot of leverage, I think. Yeah, absolutely. People look at you from very different lens, I would say, because जब मैं आसाम से बाहर गई, people like, oh, small towner, we should give them more opportunity. So it wasn't easy. I would say it wasn't easy, Okay. but definitely it required a lot of consistency, and I was very persistent on what I want to achieve. So when I left Assam for my higher education, I started with Ahmedabad as the city. My first city that I landed was Ahmedabad. Okay. And then I moved to Mumbai to work for Times of India. And then I moved to London. Okay. And वहाँ पढ़ने के बाद फिर obviously मैं पूरी दुनिया घूमी. I'm mostly into marketing and automation, but my interest lies in history, national defense and security. This shows that you have taken a very, very long jumps. क्योंकि India itself is a very big country. तो आप गुवाहाटी से सीधा long jump लेके आप अहमदाबाद गए, फिर मुंबई गए, which is around 3,500 kilometers, और उसके बाद you took another jump from Mumbai to London. So आपके जो jumps हैं, जो transitions हैं, जो elevations हैं career के, that is very very dynamic and very very progressive. तो आप क्या राय, क्या suggest करते हो Gen Z को, ताकि हमारे देश को यही लोग तो आगे लेके जाएंगे? Yes. Gen Zs are my favorite, of course. मैंने हमेशा बोला है, Gen Zs have a lot of potential, especially Indian Gen Zs. मैं ज़्यादा दूर अभी नहीं जाऊंगी, because I've seen the world. I know Gen Zs how other country responds. Right. Indian Gen Z में बहुत ज़्यादा potential है. Okay. But वो जो power और knowledge है, वो गलत direction में वो use करते हैं. बहुत ही गलत डायरेक्शन में वो अपना एनर्जी चैनलाइज करते हैं. इफ गिवन अ चांस, आई थिंक एक पॉलिटिकल शिफ्ट इंडिया में आ सकता है. इंडियन जेनजी में उतना पावर है. व्हाई आई एम सेइंग दिस इज, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ मिलेनियल्स कैनॉट पुश बैक, but Gen Z on the other hand, they can say no straight away without giving it a second thought. And that's what exactly we have seen in our neighboring countries also. And especially नेपाल की अगर बात करें तो वहाँ भी Gen Z लोगों ने ही तख्ता पलट किया. Yes. So again, we will involve politics and Gen Z and the history, geography, everything. Yeah. So yeah, good statement. Yes. Yeah. The regime shift, yes, definitely happened with the help of Gen Zs in Nepal. I would say India ने कोशिश जरूर की. You see, Cockroach Janata Party. I was very disappointed by the act, the whole drama that was created. Okay. I understand the concern. It's not like I'm not understanding the concern. All right. But understand how Indian Gen Zs are misled, misinformed, and how social media और Instagram के किसी feed पे बहुत ही easily react कर जाते हैं वो. ठीक है, पेपर लीक हुए हैं, whatever happened. That wasn't the right platform to do it. ठीक है, आप आए, गैदर हुए, किया सब कुछ. What happened? What next? What next? Okay. Do you see what I'm trying to say? They do have the energy, they do have the intent to do it, but करना कैसे? They have no one to guide. Unless and until they follow a leader. Okay. Because they don't. Gen Zs do not follow anyone. They follow their own system. They work on their own system. They need proper guidance. They need proper channel. Unless and until वो अपने से किसी को लीडर मानते हैं कि okay, we look up to that person,
Gen Zs are doomed. I would straight away say that Gen Zs are doomed. They'll be left with nothing. You mean to say that they are disruptive and without any action plan? Yeah. Suppose जैसे ये न्यूज़ में भी काफ़ी आया है कि वो लोग तख्ता पलट करना चाहते हैं हमारे देश का भी। अगर एग्जांपल लिया जाए कि चलो तख्ता पलट हो जाता है एंड मोदी जो करंट गवर्नमेंट हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, Yeah. सपोज जस्ट वी प्रिज्यूम दैट कि वो अब नहीं रहे ओके पीएम की गद्दी में, तो नाउ व्हाट इज द एक्शन प्लान? हु इज गोइंग टू बी नेक्स्ट? This is what I'm trying to tell you. ओके Okay, Gen Z want this, yes, but what next? ठीक है, हम चलिए एक बार के लिए चलिए हम मिस्टर मोदी को हटा देते हटा हैं। देते हैं। चलिए, ओके, गुड बाय सर, यू डिड वेल फॉर सो मेनी इयर्स, बट थैंक यू वेरी मच। अब कोई और हु? माय पॉइंट इज हु? करेक्ट। When we millennials or baby boomers look at, we look at Yogi ji. Yeah, absolutely. I personally look at Yogi ji. Some like Yogi ji should come. Okay. Yeah. There's a lot of factors involved when we look at government. Yes, we want informed, learned people. Yes, we do. But we want someone who can execute it. We also want someone who's an executioner. Correct. Very well said. Right? जैसे मिस्टर मोदी के पीछे मिस्टर अमित शाह है, मिस्टर जयशंकर है. They are a team. They are a team. And They it's a work very- as a team, and they're a strong team. Very strong team. Very strong team, right? और इंडिया को ऐसी टीम की जरूरत है, yes. बट इसके साथ साथ एजुकेशन की भी बहुत जरूरत है. करेक्ट. एंड इंडिया एक्चुअली क्या है कि जो ग्लोबल मार्केट है ना, चाइना हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन एंड नेक्स्ट टू चाइना कम्स इंडिया. तो पूरी जो दुनिया है ये दो ही कंट्री पे रिलाई करती है. जो एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स का जो भी काम होता है, सप्लाई एंड डिमांड का जो खेल होता है. सो चाइना अलग रूट में ऑलरेडी जा चुका है. चाइना को कोई भी एक्सटर्नल कंट्री मैनिपुलेट नहीं कर सकते या डिप्लोमेटिकली हरा नहीं कर सकते, बिकॉज चाइना खुद में सेल्फ सस्टेन हो चुका है, इस लेवल में जा चुका है. और बचता है इंडिया, और इंडिया आजकल मेक इन इंडिया में जा रहा है, दैट इज़ आत्मनिर्भर. तो उस वजह से जो काफ़ी सारे जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, उनका जो एक्सपोर्ट है, उनका जो मनी मेकिंग जो एजेंडा था, वो कहीं ना कहीं अब दब रहा है. अगर एग्जांपल के तौर पे जो आर्म्स एंड एमुनिशंस है, वो आर्म्स एंड एमुनिशंस का बहुत बड़ा मार्केट यूएस है. और आप आश्चर्य हो जाएंगे कि इंडिया पहले एक्सपोर्टर नहीं था आर्म्स एंड एमुनिशंस का. वो हार्डली 300 करोड़ का एक्सपोर्ट करता था. बट रिसेंटली इंडिया हैज क्रॉस्ड 38,000 crores ऑफ आर्म्स एंड एमुनिशंस एक्सपोर्ट. So we are defense manufacturing company, and we have made world's composite honeycomb, which is a very lightweight yet very strong technology. And उसको हमने leverage करते हुए सबसे पहले हमने बनाया था pressurized missile container for Akash, Astra, ATGM programs, which basically prolongs the life of all the missiles that the government is producing. Now using the same technology, हमने उसको leverage करते हुए बनाया world का and globally the first bullet absorbing bunker, which can take more than 1500 armor piercing rounds in just 1 square feet of area, and those rounds can include AK-47, LMG, MMG, all of those. And this is man portable, para droppable, and allows our armed forces to have greater security and protection at the borders. Again using the same technology, because it is very lightweight and very strong, we have made our shelters. These are man portable shelters. Each component weighs less than 25 kgs. 2 जवान 2 घंटे में विदाउट एनी पावर टूल्स या हाइड्रा या लिफ्टिंग इक्विपमेंट के पूरे शेल्टर को असेंबल कर सकते हैं, जो -40 से +75 डिग्रीज तक के लिए सस्टेन कर सकता है. और इस स्ट्रक्चर के बहुत सारे यूजेस होते हैं, जैसे कि मेडिकल यूनिट, इट कैन बी शेल्टर, इट कैन बी एमिनेशन, कुछ भी. एंड यही चीज हम सोलर एंड पावर के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये सेल्फ सस्टेनिंग हो जाता है. ऑलरेडी दिस इज फर्स्ट इन द वर्ल्ड. दिस इज ऑलरेडी बीइंग सप्लाइड टू नॉर्दर्न कमांड. ऑल आवर शेल्टर्स आर आल्सो बीइंग सप्लाइड टू नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न कमांड ऑलरेडी. सो आर्मी इज बेनिफिटिंग फ्रॉम सच टेक्नोलॉजीज. There are various African countries also. They are importing Indian made products. करेक्ट. सो ये सारी चीज़ें काफ़ी यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज़ को नहीं पसंद आ रही है, क्योंकि उनका मनी मेकिंग पॉलिसी कहीं ना कहीं बंद हो रहा है. करेक्ट. और इस वजह से वो लोग डिसरप्ट कर रहे हैं फ्रॉम द बैक डोर, जेनजी के थ्रू, जो कि नेपाल में भी हमने देखा कि तख्ता पलट हुआ. सो आई डोंट नो वेदर इट्स द सेम रिजाइन या जो भी, बट प्रोसेस वही कहीं ना कहीं सेम ही है. मैम, तो इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे वाशी? सो लेट मी टेक अ स्टेप बैक और हम वन बाय वन इस चीज को डाइसेक्ट करते हैं. लेट्स जस्ट डाइसेक्ट एंड लुक एट इट फ्रॉम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव.
फर्स्ट ऑफ ऑल हम दो इंडिया में रहते हैं. देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंडिया. ब्यूटीफुल. दो इंडिया. देयर इज टू इंडिया. एक भारत, एक डेफिनेटली इंडिया विच इज एट अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म. ठीक है. भारत एक इंडिया. इंडिया विच इज एट अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म is the fastest growing economy. हमें कोई beat नहीं कर सकता है. In next 10 years, India is going to be the powerful, one of the powerful country, XYZ, blah blah blah. आप जितने अच्छे adjectives हो सकते हैं, आप add कर सकते हैं. That is global India. Okay. That is the first part of India where we have Ambanis and the Adanis ruling, and you get the gist of it. Got it. Now we have भारत, जहाँ पे लोगों को jobs मिलने में भी problem आ रही है, जहाँ पे लोगों की जॉब्स जा रही है, जहाँ पे लोगों को अब सोचना पड़ रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल दे या गैस का बिल दे या कैसे मैनेज होगा मंथली एक्सपेंडिचर. नाउ दिस इज ऑल बीन कंट्रोल्ड बाय द ग्लोबल पॉलिटिशियंस. और इसमें भी लोग कहते हैं कि एआई हमारा जॉब ले रहा है. एआई जॉब ले रहा क्या है. ये सही है या लोग स्किल्ड नहीं है? Well, half of my job, I am relying too much on AI. I'm not gonna lie. मैं खुद AI पे बहुत ज़्यादा rely करती हूँ. Right. But I think this is my perspective. जितने भी global leaders हैं, जितने भी global CEOs हैं, co-founders हैं, yes, they are trying to cut down the cost. But what I am seeing through from a different lens, which is, Okay. for 5 years, yes, you can control your expenditure. After 5 years, this bubble is going to burst. You will need people. All education is about learning to think. It's about learning to problem solve. And whether that was 30 years ago, now, or 30 years from now, I think it's the same. The technology changes over time, but if you can learn how to solve problems, you're going to do great things. You will definitely need people. Correct. आपको मैं और कुछ साल पीछे लेके जाती हूँ. When I'm talking about how India, we have great leaders. Let's understand this first. We have great leaders. Execution is the problem यहाँ. यहाँ execution is the problem. The greatest example is demonetization. Beautiful plan, but execution आप देखिए कैसे hodgepodge हो गया पूरे country में. Insecurity, instability, economic crisis. अगर इस चीज को सही तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता, मिस्टर मोदी का ये प्लान फैंटास्टिक था, बट ये सही तरीके से एग्जीक्यूट ही नहीं किया गया बिकॉज ऑफ ब्यूरोक्रेट्स एंड इंडिया में लोग बोलते करप्शन है. इंडिया में देयर करप्शन हम अलग तरीके से देखते हैं. वी थिंक करप्शन इज मॉरल इनफेक्ट जो होता है. इंडिया में सही चीजों के लिए करप्शन है. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. हम सही काम करने के पैसे लेते हैं, आपको पता है ये बात. फॉर एग्जाम्पल मुझे पेंशन मिलनी है, राइट. मुझे मेरी पेंशन चाहिए. एक सर्टेन एज के बाद मेरी पेंशन आती है. वो पेंशन सैंक्शन कौन करेगा? सिग्नेचर किसका चाहिए? जो बाबू साहब बैठे हैं वहाँ पे डेस्क पे, वो बाबू साहब बोलते हैं इतना आपका पेंशन है, इतना मुझे चाहिए. इट्स हिज जॉब. वो कर सही रहा है, लेकिन सही काम के वो पैसे ले रहा है. Do you understand the conflict of morale here? Right. It's यहाँ पे गलत चीजों को लेके करप्शन नहीं है, यहाँ पे सही चीजों को करने का करप्शन है. एंड जहाँ तक बात रही चाइना या जापान या अदर डेवलप्ड नेशंस और डेवलपिंग नेशंस वी आर टॉकिंग अबाउट, इंडिया का प्लान बहुत अलग था. हम मोदी जी को बोल तो जरूर देते हैं कि यार ये कुछ नहीं कर रहे, ये फलाना नहीं कर रहे. अगेन आई विल कम बैक टू माय पॉइंट. Right. प्लान इज नॉट द प्रॉब्लम, एग्जीक्यूशन इज द प्रॉब्लम. Well said. मोदी जी हमेशा बोलते हैं मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, बट नीचे के जो लोग हैं वो मेक इन इंडिया होने ही नहीं देना चाहते हैं. Right. स्टार्टअप्स आर सपोज टू गेट XYZ फंड्स, लेकिन वो XYZ फंड्स निकालने के लिए उनको एक परसेंटेज उनको ही देना पड़ रहा है. क्यों? We'll have to think through this. Why he wants us to be a manufacturer? Because उनको पता है कि China is a threat, and which it is. हमारे डेटा, हम जो आईफोन यूज करते हैं, जो असेंबल्ड होते हैं, कहाँ होता है ये सब? चाइना. आप हर एक चीज देख लीजिए, हमारे कपड़े देख लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग,
हर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, either it is Bangladesh or Vietnam or any other neighboring country. Yeah. Even Vietnam is growing at a very fast pace. Exactly why. In fact, premium brands like Dior and Zara and Louis Vuitton, ये अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वहां बिठा रहे हैं. So that's why Modi ji is very pro Make in India. He has a perfect plan, but execution नहीं हो रहा है. So I think India need to restructure their structure. Got it. उनको खुद के स्ट्रक्चर में चेंजेस लाने की जरूरत है. We have a plan and these are the executioners. It goes nowhere. Nobody is going to sign such documents apart from this team, and this team should be managed straight through the higher central management और कहीं से भी नहीं. That's how we can change India. It looks like a very beautiful plan when I'm saying this. On papers भले ही beautiful लग सकते, but it's a very difficult task. Very difficult Correct, task. क्योंकि 150 करोड़ की आबादी है. एंड इसमें मिनिस्टर्स ही नहीं, जो ब्यूरोक्रेट्स है Of वही नहीं, course. इसमें जो आम जनता है, दे आर आल्सो इक्वली रिस्पांसिबल. 100% they are. 100% दे आर रिस्पांसिबल. Yeah. उनमें भी सिविक सेंस होना पड़ेगा. Yes. आप तभी. किस किस को रोक लोगे? करेक्ट. दैट इज द पॉइंट. सो इंडिया को स्टार्ट करना पड़ेगा. अगर हमारी गवर्नमेंट कोई चेंजेस लाना भी चाहती है ना, सबसे पहले अपोज हमारी जो नॉर्मल पॉपुलेशन है वही वो कर जाती करते है. हैं. राइट, दैट्स अ पॉइंट. इट्स अ वैलिड पॉइंट. हम अगर आज बोलते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल करना, चलिए मोदी जी ने बोल भी दिया पॉपुलेशन कंट्रोल हो गया, पहले तो मोदी जी को ही बैश कर देंगे कि हटाओ इनको, बच्चे तो भगवान की देन है. अरे ठीक है, भगवान की देन है, लेकिन भगवान स्ट्रेट अवे नहीं आएंगे आपको खाना देने के लिए. राइट. You have to work hard for it. You have to understand. And obviously then comes the religion and the caste and the dharmas and these dharm gurus and whatnot. मतलब ये तो एक अलग ही फिर tangent चला जाता है. If we want to talk about it, ये तो अलग एक channel podcast बनना पड़ेगा. But the point is, every individual, every Indian has to think this is for a greater good. एब्सोल्युटली. तभी चेंज हो पाएगा और तभी हम एक सस्टेनेबल इंडिया बना पाएंगे. अब सस्टेनेबल रिसोर्सेज की नहीं, अब सस्टेनेबल इंडिया की बात आ चुकी है. हमने भी जो काफ़ी रिसर्च किया, तो रिसर्च में ये पता चला कि इंडिया को प्रॉब्लम्स खाली एक तरफ से नहीं है. बिल्कुल. इंडिया को प्रॉब्लम इनसाइड आउट, Yeah. राइट, फ्रंट, लेफ्ट, सेंटर, सब जगह से है. तो खुद अपने लोगों के साथ भी उनको इश्यूज को डील करना पड़ रहा है. हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी ही है. पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पर आता है. जैसे मणिपुर में 100%. कुछ साल से भी इश्यूज चल रहे हैं, मिलिटेंट इश्यूज जो बोल रहे Yeah. हैं. तो और प्लस एक्सटर्नल सोर्सेज भी हैं जो फंड करते हैं. तो आम जनता को, जेनजी को शायद ये नहीं पता है कि मणिपुर में भी जो इश्यूज हो रहे हैं वो यूरोपियन कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज Yeah. के वहाँ के लोग फंड करते हैं Of आर्म्स course. एंड एमुनिशंस के जरिए, ताकि यहाँ पे कुछ लोग में जब थ्रेट्स बढ़ेगा तब आर्म्स एंड एमुनिशंस का व्यापार और बढ़ेगा. Yes. तो किसी के कैजुअलिटीज, Yeah. किसी के कॉफिन का बिजनेस बनता है. Yes. सो Yes. तो ये चीज़ें जेनजी को शायद पता नहीं है. अब क्योंकि हम नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं और वाशी अरुणाचल प्रदेश में कुछ ऐसी जगह भी है आज भी, आफ्टर 78 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, अब जाके उनके गांव में एक इलेक्ट्रिसिटी Yes. आई है. कनेक्शन पूरा हो गया, अभी लाइट दे रहे हैं. अभी हम लोग गोची का फर्स्ट टाइम अभी लाइन चार्ज करेगा दूसरा ट्रांसफार्मर ना. 1947 से आज तक यहाँ में लाइट नहीं था, आज हम लोग फर्स्ट टाइम चार्ज करेगा. लाइट जलेगा कि नहीं देखते हैं. जय विश्वकर्मा बाबा की जय जीसू. बहुत लाइट मिल गया, खुशी हो गया. अभी हाउस कनेक्शन में ये चलो, ये मेरा बंजा मामा का सबसे पहले हम लोग अभी हाउस कनेक्शन टेस्ट करेगा. अब तक 1 आवर ना. अभी हम लोग का गुच्छी आज फाइनली हम लोग का लाइट आ गया है. कनेक्शन हो गया. अभी मेरा घर लास्ट जला जाए, अभी जला के देखिएगा. तो बहुत सिंस 1947 से हम लोग का कभी लाइट मिला नहीं है, तो आज 2026 में मिला है. तो बहुत खुश हूँ और रियली ग्रेटफुल टू
हम लोग का ऑनरेबल एमएलए श्री जी.के. ताको इसका प्रॉमिस का जैसे प्रॉमिस किया है ऐसे लाइट दिया है हम लोग को। थैंक यू एवरीवन। चलो अभी थोड़ा बाद में हम लोग घर जलाएगा। असली लाइट कब तब होगा घर में जलाने का। सो जो सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में जो रहते हैं ना, जैसे दिल्ली में, उन लोगों को नहीं पता है कि ग्रेटर पार्ट ऑफ इंडिया क्या है। तो हमारे यहाँ पे अरुणाचल में, असम में, मेघालय बॉर्डर्स में पहले हमारे जो LOCs थे ना वो सिक्योर्ड नहीं थे। Yeah. So there has been a lot of investments which have been done in the recent years, जिससे हमारा अरुणाचल प्रदेश काफ़ी स्ट्रांग हुआ है, हमारा असम बॉर्डर काफ़ी Yeah. स्ट्रांग हुआ है, स्पेशली क्योंकि इस फ्रंट में बांग्लादेश है, इस फ्रंट में चाइना है। Yeah. और बांग्लादेश ऐसा देश है जिसको 1971 में हम ही ने हेल्प किया था, हम ही ने आज़ादी दिलवाई थी, और आज वो हमारे पीछे ही पड़ा हुआ है। और सिमिलरली वही अगर हम नॉर्थ में चले जाए तो पाकिस्तान, POK, ये सब जो है, तो हर फ्रंट में इंडिया अलग अलग वॉर तो लड़ ही रहा है, प्लस इंटरनल वॉर भी लड़ रहा है। और यही चीज़ें आई थिंक जेनजी पूरा रिसर्च नहीं कर रहे हैं। हमने शायद HR में अगर आपको याद होगा मैस्लोज हायरार्की थ्योरी पढ़ी थी, Yes. रोटी कपड़ा मकान। मकान। तो आई फील माई सेल्फ वेरी प्राउड कि मैं मिलेनियल में जनरेशन में मैं Yeah. पैदा हुआ, क्योंकि मैंने बिफोर द मोबाइल भी एरा देखा है कैसा है। तो राइट। आज की जो जेनजी है ये मैस्लो हायरार्की में रोटी कपड़ा मकान में ये आते ही नहीं है, करेक्ट। क्योंकि इनके पेरेंट्स ने वो चीज़ों का अचीव कर लिया है, Achieve एंड दे कर हैव लिया। मेड इट लुक वेरी इजी। करेक्ट। We have not glamorized anything. Some people have, of course, but we have made it look easy. But to be honest, I'm not a very big fan of millennials. ओके। I myself am a millennial, but I'm not a very big fan of this generation because first of all, they don't know how to say no. They don't know how to say no. 90% of the millennials के yes sir, हम रात को 9 बजे भी काम करेंगे की वजह से वो 10% millennials सफ़र करते आए हैं, and they are called rebels. They are either kicked out of the company or they are not given promotions or raise because they say no. They have taken that responsibility कि हम आगे के generation को ऐसा नहीं होने दे सकते हैं, and I think Gen Zs have turned out beautifully. It's like, sir, 6 o'clock is my log out time. I am logging out. Here starts the family time. People talk about work-life balance. Where is this which work-life balance are we talking about? Everyone is living a miserable life outside their company, in the company and outside. Powerful. That's a very powerful statement. If we talk about our colleagues, आप phone उठाए बात की, how are you? It's like लगी पड़ी है. This term, this whole phrase लगी पड़ी है. Why? हमारा खुद का बिजनेस होता तब हमारी लगी पड़ी होनी चाहिए, बिकॉज हमारे खुद का है. वी आर वर्किंग हार्ड फॉर इट, वी आर बिल्डिंग इट. लेकिन जब आप देखिए माइंडसेट कैसे चेंज होता है, जब हम खुद के लिए रात को 12 बजे भी काम करते हैं, वी डोंट से लगी पड़ी है, वी से वी आर बिल्डिंग. हमने ये चॉइस, दिस इज माई चॉइस दैट आई वॉन्ट टू वर्क इन अ कॉर्पोरेट, राइट? आई एम बीइंग पेड XYZ, I'm going to work XYZ. Why is it hard for the management to take no? You're not paying me extra. आपने वो मूर्ति सर का आपने रेस्पॉन्स सुना होगा, वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट. यस, वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट. I myself, when I heard it, I was like, if leaders like you at a global platform will talk like this, definitely people who are hiring us abroad will take us as donkeys. And he's a very renowned leader. Exactly, he's a renowned person. How can you say something like that? और उसी में then आनंद महिंद्रा सर ने भी बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट दिया था. Yeah. He gave a very disciplined statement on that, and I love this person. Yeah, of course. Anand Mahindra Yeah. sir, he's amazing. I know. He's And, lovely. He gave a very बोलते ना शेर को सवा शेर मिला है. करेक्ट. एंड इसी चीज़ में एक और चीज़ ऐड करता हूँ कि बिकॉज ऑफ दिस मेक इन इंडिया ही, आत्मनिर्भर भारत की वजह से ही महिंद्रा ग्रुप इतना इंटरनली काम कर रहा है कि वो अब डिफेंस फोर्सेस के लिए भी
आपके जो बैलिस्टिक मिसाइल्स तक Right. ब्लॉक कर सकते हैं। पहले जैसे यूएस में खाली उसको हमर गाड़ी कहा जाता है, हमर, करेक्ट। तो वो गाड़ी, उस टाइप्स की गाड़ी अब महिंद्रा ये महिंद्रा की अरमाडो। भाई अगर अमेरिका के पास हमर थी ना तो हमारे पास है ये गाड़ी पूरी तरीके से बुलेट प्रूफ है। इनफैक्ट पार्शियली माइन ब्लास्ट को भी ये प्रोटेक्ट कर सकती है। जितना भी तू ग्लास एरिया देख रहा है वो प्रॉपर्ली बुलेट प्रूफ आता है। AK-47 इंसास ये राइफल इस गाड़ी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इनफैक्ट इसके जो टायर्स भी देख रहा है ना, ये भी रन फ्लैट टायर्स है। इसको भी गोली लगते तो गाड़ी नहीं रुकने वाली। भाई इसमें आता है 3.2 लीटर का 6 सिलेंडर डीजल इंजन जो इसको देता है 120 kmph की टॉप स्पीड। सोच, एक बुलेट प्रूफ गाड़ी 120 की रफ्तार से कहीं जा रही होगी, क्या लगती होगी यार ये। इसमें एक फीचर रोल्स रॉयस से भी आता है जो कि है इसके सुसाइड डोर्स, जो कि बहुत ही भारी हैं। और फिर इसमें मिल जाता है एक पूरा कस्टमाइज्ड डैशबोर्ड जिसके अंदर काफी सारे बटन्स आते हैं। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, 4 स्पीड है, लेकिन उसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में भी लॉक किया जा सकता है ऑफ रोडिंग के लिए। और फिर काफी सारे यहाँ पे टॉगल कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं, लेकिन जो तू देख सकता है वो है पीछे। वहां के ऊपर कोई भी गन माउंट करी जा सकती है, कोई भी LMG माउंट करी जा सकती है। तो कभी किसी दुश्मन के इलाके में भी एक गाड़ी लेके जाए तो ऑफेंस का भी पूरा हिसाब रखा गया है। इंडियन आर्मी के लिए कैपेबिलिटी की डेफिनेशन ये है। मौत कल आती है, आज आ जाए डरता कौन है। और तेरे लश्कर के मुकाबले अकेला हूं, मगर फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। बना रहा है। सो ये सारे इंटरनल इनपुट्स है करेक्ट। जो अंदर ही अंदर इतने हमारे होम बॉर्न कंपनीज जो है वो इतने आगे जा रहे हैं, और महिंद्रा इतना आगे जा रहा है, अच्छा लगता है कि वो एक्सपोर्ट भी कर रहा है कमर्शियल व्हीकल्स, LMV व्हीकल्स और डिफेंस व्हीकल्स। सो इंडिया इज ट्रांजिशनिंग, बट शायद जेनजी को ये दिख नहीं रहा है या उनको देखने नहीं दिया जा रहा है। I would say उनको देखने नहीं दिया जा रहा है। Okay. I would place it at that. And I would also want to tell all the millennials, ये I'm going to say it where people are going to laugh about it. Okay. हमारी well, I'm not married, but what I'm going to say it how it is. I'm not going to sugarcoat it because I don't know how to do it. I don't know how to sugarcoat things, but I'll say it. I would like to say something. After this podcast, you might get a couple of Hate comments. no proposals. But I hope not. But जैसे हमारी फैमिली लाइफ है, when a woman is married, उनकी मदर इन लॉ कहती है हमने तो हमारे जमाने में ये किया था तो तुम क्यों नहीं करते, Right. तुम्हें क्यों नहीं हो सकता या तुम क्यों नहीं कर सकते। मेरा कहना ये है वो सारी मदर इन लॉज को, आपने जो पेन सहा है आपको तो ये होना चाहिए ना कि मेरी बहू वो पेन गो थ्रू ना करे। Absolutely. You see what I mean? Absolutely. Millennials Yeah. now who are managers. I would like to name a few millennial managers who are there and they are really chill. In fact, I have been trained by some of the beautiful managers. I would definitely name them, but I would say कुछ millennials ऐसे हो गए हैं ना कि हमने slog किया है, हमने struggle किया है, so we'll make sure Gen Z struggle. क्यों करना है struggle? हमारे टाइम में बहुत सारे इक्विपमेंट्स नहीं थे, बहुत सारा फैसिलिटीज नहीं थे। चैट GPT, इट वाज़न्ट देयर। हमारे जेंजी के पास है, लेट देम यूज इट, व्हाट्स योर प्रॉब्लम। These are resources actually. एग्जैक्टली। बेबी बूमर्स जब वो थे तो उनके पास कुछ नहीं था जो हमारे पास था। सो वी नीड टू स्टॉप दिस होल लिनिएज ऑफ ट्रॉमा जो डाउनलोड करते आ रहे हैं हम अपने नेक्स्ट जनरेशन पे, बीट आवर फैमिली और बीट आवर प्रोफेशनल लाइफ। वी नीड टू स्टॉप डूइंग दैट राइट नाउ। अगर हर घर से ये शुरू हो जाए ना, आई वुड से इंडिया इज गोइंग टू चेंज ओवरनाइट। इफ वन फैमिली स्टार्ट्स डूइंग दिस एंड वो दूसरे को इन्फ्लुएंस करेगी तो आई एम श्योर इंडिया कैन चेंज। इंडिया हैज द पोटेंशियल, बट इंडिया हैज टू fight on things like religion, caste, God, कौन भगवान बड़ा है। You see what I mean? Important topics है. There are bigger topics in this. Correct. So we need to stop this straight away जहाँ पे हम trauma अपने next generation को as a dowry दे रहे हैं।
Stop it to all the managers. ये एक्चुअली बेसिकली परसेप्शंस की वजह से होता है. कुछ लोग जो नेगेटिव परसीव करते हैं ना हमेशा कि मेरे साथ अगर हुआ है तो मैं भी दूंगा, और कुछ लोग होते हैं मेरे साथ हुआ है स्टॉप, मैं आगे ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होने दूंगा. I will be that change. I will make that change. Because obviously I have also been a victim of this pressure. So I don't do that with my team. Straight no. I have a wall. वहां से नीचे नहीं जाएगा. Wow, like Rahul Dravid, the wall for the team. Absolutely. Yeah. किसी ना किसी को तो बनना ही पड़ेगा the wall. Yeah, of course. Correct. Very nice. I am the Rahul Dravid of the team, 100%. That is powerful. That is nice also. Yeah. And साथ ही साथ अभी ये जो coming back to again to the same topic, कॉकरोच जनता पार्टी. So अभी ये लोग धरना कर रहे थे काफी जगह, फिर पता चला है कि जयपुर ना कहाँ भी उसको थप्पड़ मारा गया, ठीक है, पब्लिकली. तो ये सारी चीजें हो रही है. तो what do you have to say about it? Is it okay if I say I should blame media for this? Okay. Let's not glamorize all this nonsense happening on streets, please. Let's just stop it here. Let's not do this. Why are these Gen Zs or why are these so-called students not protesting for Khan sir? Let me ask you this question. That's a powerful question. Yeah, actually किसी ने नहीं किया. हाँ, किसी ने नहीं किया. जबकि खान सर is related to education and Khan sir is epitome. Khan sir is student. अगर बोले right. आप समझ, he's a epitome. उन्होंने कितना कुछ चेंज किया. Okay, he's been charged for certain accidents, but क्या वो actually हुआ है? Every parent is like, oh ये कर दिया, वो कर दिया. उन्होंने अच्छा भी उससे पहले बहुत कुछ किया है. Why is that not considered? India is a country of law and order. But public takes law and order in their own hands. Correct. Let me find the Societal judgment. pressure is so much कि वही victim बना देता है पहले से, culprit बना देता है. They want to be their own judge. They want to declare their own statement. Correct. There's a court. There are lawyers and judges जो अपनी responsibility निभा सकते हैं. As a society, as a parent, as a student, please do your job. ये आपने बहुत अच्छा बात बोला कि मीडिया, आपने डायरेक्टली जो बोला. कमिंग बैक टू दिस, कुछ साल पहले दिल्ली में एक कांड हुआ था. एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय था, ही इज अ सरदार, ही इज अ सिख. तो उसका कुछ रोड I remember कि लड़की ने हाँ, बोल और दिया था, उस बंदे को कंपनी से निकाल दिया गया था. उसको जेल जाना पड़ा था. फिर जब वो आया वापस और लॉ ने he was wrongfully convicted. He got a clean chit. Yes. और बताया था कि गलती लड़की की थी और लड़की तो फिर बाहर सेटल हो गई. पहले ही हो गई. Correct. और ये लड़का का मतलब उसको इतने मतलब बताना से जाना पड़ा. सोसाइटल प्रेशर. कि उसके बाद अगर उसको जॉब भी मिले या जो भी है, मतलब इट्स अ डिजास्टर. सो मीडिया प्लेज अ वेरी बिग रोल. एक्चुअली मीडिया शुड प्ले अ रोल ऑफ एजुकेटिंग पीपल. आई फील दैट 100%. मीडिया हैज सो मच पावर. मीडिया शुड एक्चुअली एजुकेट पीपल. आपके पास अगर ये पावर है तो व्हाई नॉट यू एजुकेट योर पीपल. बट आप टीआरपी इसके लिए आप लगे रहते हो. अगर कोई चिल्ला रहा है तो भाई अगर वो अपना वोकल कॉर्ड फाड़ रहा है एक गुना तो आप 2 गुना फाड़ो. Correct. I think media as a whole, they need to change their pattern. Let's act like journalists. Let's not act like fishermen. Correct. You are educated. You have a mic. You're on national TV. Please act disciplined. अभी उनके managers या उनके boss बोलेंगे discipline will not get us TRP. At least try. Palki Sharma never shouts. She's very refined. She is lovely. She knows what to talk, where to pause. क्या आपको क्या लगता है उनके मैनेजर की तरफ से उनको प्रेशर नहीं है अगर टू येल एंड शाउट एंड ब्लास्ट योर वोकल कॉर्ड्स, मतलब एकदम ताकि आपको फेरेंजाइटिस ही हो जाए, इतना आप चिल्लाओ. आई एम श्योर हुआ होगा, उनको भी प्रेशर आया होगा. Being a woman. Exactly. So she can be considered as a wall. Oh, 100%. In the journalism. 100%. She is the wall. She's the wall. I really look up to her, the way she delivers news, the way she talks, very firm, absolutely beautiful tone. और जहाँ जिस वर्ड पे प्रेशर डालना है वो वहीं डालिए. चिल्ला के नहीं कि देखिए आज यहाँ पे वाह. Correct. अगर
अगर आपको कोई न्यूज़ डिलीवर भी करना है, इफ़ यू आर डिलीवरिंग समथिंग, अगर आप नॉर्मल टोन में भी बोलोगे तो उससे वो न्यूज़ का इम्पैक्ट कम नहीं हो जाएगा. आई एम टेलिंग यू फ्रॉम अ कॉमन मैन्स हाउस. मैं आपको बोलती हूँ, जब हम न्यूज़ लगाते हैं ना, माई फादर डजंट लाइक न्यूज़ जो एंकर ज़्यादा चिल्लाते. ही डजंट, ही इज लाइक प्लीज चेंज द चैनल एंड लेट्स वॉच समथिंग विच इज़ मोर सूदिंग टू योर ईयर्स एंड नॉट येलिंग एंड शाउटिंग. सो दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू एंड आई एम श्योर बाकी सब घरों से वही आता होगा कि न्यूज़ शुड बी कंसिडर्ड एज न्यूज़. और अब क्रेडिबिलिटी इज ऑल्सो अ पॉइंट. करेक्ट. कि जब अभी रिसेंटली ये वॉर चल रहा था, कितने सारे मिस इन्फॉर्मेशन आ रहे जा रहे, लाइक क्रेडिबिलिटी भी नहीं रही है अब तो न्यूज़ की. कौन सा न्यूज़ देखे, कौन से न्यूज़ में क्रेडिबिलिटी है? एवरीबडी इज सेलिंग देयर ओन टीआरपी फॉर टीआरपी ओन न्यूज़. लाइक वो खुद के न्यूज़ चला रहे हैं. लाइक there's no credibility of the news. कहाँ, where are we going? There are beautiful anchors. I would say Anjana Om Kashyap was a beautiful anchor. Rubina Liaquat. What is happening to these people? Why are you following the crowd of people who are yelling? You guys are literally someone who people look up to you. Absolutely. They used to speak sense. Yeah, they Until used this, to. Yeah, until past this- tense. Yeah. Yeah, until this Khan sir वाला जो issue हुआ. Not just Khan sir. You now you look up to the news. Anjana Om Kashyap, mostly she'll talk about religion. क्यों? आपके पास और कोई कंटेंट नहीं है, या आपको कुछ और कंटेंट दिया नहीं जा रहा है, या फिर आपके मैनेजमेंट को लगता है कि इस कंटेंट में आप चिल्लम चिल्ली कर सकते हो. So I'm not judging someone's knowledge. I'm not judging someone's credibility. My point is, we as a whole, I myself, I'm including myself in this. Got it. We as a whole need to make the change. One person cannot make the change. Me and you cannot make the change. We can just start, जैसे खान सर ने start किया, and you see what has happened. कुछ सालों के बाद something like this. Obviously, वहाँ पे भी there will be a political propaganda involved. When you look at it from a micro lens, you will see through के exactly वहाँ चल क्या रहा है. He's now, I cannot say it out loud, but people are knowledgeable. I would say customers are not fooled. They can read, they can understand, they can sense. अगर आप भीड़ देख रहे हो ना, अग्री मत करो कि वो हमारी नॉर्मल जनता होगी. They might have been funded by someone else. Absolutely. This is for Gen Zs. आपने बहुत गहरी बात बोली. Yeah. क्योंकि they might be funded. Yeah. यही तो चीज़ हो रहा है मणिपुर का, अगर देखा जाए तो इंटरनल. और आई एम सॉरी बट जो अभी रिसेंटली हम लोग जो कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसका भी यही बातें निकल के आ रहे हैं. Yeah. कि they have a disruptive plan, Yeah. but they don't have an action plan. Action plan. Yeah. उनको ये है कि आपको हटाना है, तख्ता पलट करना है, Yeah. उसके बाद किसको लाना है वो पता वो नहीं. नहीं पता. तो अगर हमारी यूथ्स ये जेन्युइन है तो ये ऐसा काम नहीं करेंगे. I would say Yogi. I would vote for Yogi. Right. I would definitely want to see this man in action. Yogi. अगर yes, I think UP ने, come on, so much work has been done in UP. Come on, salute to this man. And also understand, अभी कुछ लोग comment करेंगे, do you know about history of Yogi, this and that, how criminal he was, this is. My question is, तो क्रिमिनल का सफाई कर रहे हैं ना, क्रिमिनल होके. We need a strong leader, and anyone who is in the public figure is a great person. एंड योगी के बारे में अगर बोलो तो ही इज अ मैन, ही इज अ पर्सन हु हैज द एबिलिटी ऑफ सेइंग नो. जो Yes. आपने स्टार्ट किया था. Yes, So he this does. person has the ability of saying no. Yeah. If something is right, he will appreciate it. Religion उनके लिए मैटर नहीं करता. नहीं करता. If something is wrong, India needs Yogi. India doesn't need Modi because Modi ji is very muffin. He's a butter muffin. Cupcake. He's a cupcake. बहुत प्यार से रखा है. India तभी बिगड़ गए. तभी बच्चे कुछ लोग, हाँ, तभी कुछ लोग Exactly. बच्चे बिगड़ हड्डी गए. कर लेते हैं. मोदी जी ने बहुत प्यार से बच्चों को रखा है, Correct. इससे बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं. Correct. You know, you have to bring in
एक स्ट्रिक्ट चाचा ताऊ होता है ना, जो स्ट्रिक्ट होते हैं, वो स्ट्रिक्ट चाचा ताऊ को आप लाइए एंड देन सी द डिफरेंस. करेक्ट. बच्चों को थोड़ा सा पिटाई भी पड़नी चाहिए. बहुत सही बोला आपने, बहुत सही. So yeah, I think Gen Z need to look through and through. They have to read. I Yeah. think they are not reading nowadays. Gen Z people are not reading nowadays. That's why it's a national security and it's Correct. a threat. They have to, they have to initiate reading habits. 100%. This is I wouldn't agree so much. This is absolutely true. उनको पढ़ना ही पड़ेगा. I won't say it's a choice. Correct. It is not a choice. Correct. You have to do it for your betterment. Right. We have a Gen Z जो influences है, but Right. nevertheless we also have Gen Z's जो IS बन रहे. Right. So Okay, very nice. It was very powerful discussion, Yes. Vashi, and hope we'll continue again Yes. on the same topics. We have various topics, I think. With you, it can go on and on and on. I hope हमारे audience को पसंद आया होगा. So we have once again with us Vashi Mishra. आप इनको follow कर सकते हैं social media channels पे, LinkedIn में, Instagram में. ये अवेलेबल है. आप इनसे डायरेक्ट DM करके भी बात कर सकते हैं इफ़ यू गाइज नीड एनी हेल्प, असिस्टेंस और एडवाइस फ्रॉम हर. एंड माय नेम इज़ राहुल भारद्वाज, साइनिंग ऑफ फॉर नाउ. थैंक यू. thank you.